Friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parvani, Maharashtra, India. So today's point of discussion will be section 53 to section 54. In this lecture, we will discuss three sections, section 53, section 53A and section 54, which are dealing with the medical examination of accused person. So what are the particular provision relating to the medical examination of any accused that we will discuss in today's lecture. We will also discuss the probable question which may be asked by the examiner on these sections and the question asked by the examiner in the previous पेपर. तो आज का हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है सेक्शन 53, सेक्शन 53A एंड सेक्शन 54, जिसमें अक्यूज्ड के मेडिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात की हुई है. तो इस पर पूछे गए क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे और ऐसे क्वेश्चन जो एग्जामिनर इस पर पूछ सकता है वो भी हम आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. Arrest, section 53, 53A and 54 of Criminal Procedure Code. Section 53 deals with examination of accused by medical practitioner at the request of police officer. So whenever the accused is arrested by the police officer, at the request of police officer, medical examination of accused may be done, and that provision is mentioned under section 53. So when a police officer after arrest believes that the medical examination of accused helps in the recovery of any evidence, they can send the accused for medical examination. Suppose if the police officer arrests any accused and the police officer having reason to believe that the medical examination will give and will afford a reasonable evidence against the accused person, then under such a circumstances that particular police officer may send the accused for medical एग्जामिनेशन. तो जब कभी भी पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड को अरेस्ट करेंगे और पुलिस ऑफिसर को यह लगता है कि अगर अक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो कुछ एविडेंस मिल सकते हैं अक्यूज्ड के अगेंस्ट में हमको, तो उस सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर अक्यूज्ड को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए रेफर कर सकते हैं. द पुलिस ऑफिसर कैन यूज सच फोर्स एज इज रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस. सपोज if the accused person resists for medical examination, then under such a circumstances police officer is having a power to use a reasonable force for the purpose of effecting a medical examination. तो अगर accused मना करता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो रेजिस्ट करता है, अपोज करता है उसको, तो उस सिचुएशन में रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हैं पुलिस ऑफिसर उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए. देन whenever the person of a female is to be examined under this section, the examination shall be made only by or under the supervision of a female registered medical practitioner. Suppose if any female required to be examined medically, then medical examination of such a female shall be made only by और अंडर द सुपरविजन ऑफ अ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. तो जब कभी भी किसी फीमेल का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है तो एक तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगी, या कोई मेल कर सकता है लेकिन उस किसके सुपरविजन में, अंडर द सुपरविजन ऑफ फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर. मतलब मेल मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, उसके साथ रहेगी, सुपरविजन किसका रहेगा, female registered medical practitioner ka. So that is provision of section 53. Now section 53A, examination of person accused of rape by medical practitioner. So if there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to the commission of such offense. So section 53A specifically mentioned that medical examination of accused of rape. So suppose if the police officer has reason to believe that a medical examination of accused of rape will give a certain evidence against the accused person, then under such a circumstances medical examination of that particular accused will be done. So at the request of a police officer not below the rank of sub-inspector and registered medical practitioner from government hospital, or in the absence of such a
practitioner within the radius of 16 kilometers from any other registered medical practitioner. So whenever the medical examination of accused of rape is required, then the police officer not below the rank of sub inspector may request any registered medical practitioner from government hospital, or in his absence any registered medical practitioner within a radius of 16 kilometers. समझ रहे हो कि जब कौन रिक्वेस्ट करेगा रेप के अक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए? ऐसा पुलिस ऑफिसर जिसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर होना चाहिए, वो रिक्वेस्ट करेगा किसको? रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल। पहले तो देखा जाएगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल का कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, अगर वो नहीं है तो विद इन रेडियस ऑफ 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर के दायरे में कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को वो रिक्वेस्ट कर सकता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। द फोर्स कैन बी अप्लाइड फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन, तो रेप के अक्यूज्ड के मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए फोर्स भी अप्लाई हो सकता है। अभी the registered medical practitioner conducting such examination shall without delay examine such person and prepare a report of his examination giving the following particulars. So whenever the accused is referred to registered medical practitioner, it will be the duty of that registered medical practitioner to conduct a medical examination immediately without any kind of delay and prepare a report mentioning the following particulars. तो medical examination तुरंत होना जरूरी है। जब कभी भी अक्यूज्ड को रेफर किया जाएगा, मेडिकल एग्जामिनेशन उसका तुरंत होना चाहिए और कुछ पर्टिकुलर्स मेंशन करना चाहिए उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में। वो क्या रहेगा? द फर्स्ट वन इज द नेम एंड एड्रेस ऑफ अक्यूज्ड एंड ऑफ द पर्सन बाय whom he was brought. तो दैट पर्टिकुलर मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट मेंशन द नेम ऑफ अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का नाम, साथ साथ उसको किसने लेकर आया वो, एंड तो ये दोनों चीजें वहां पर एड्रेस के साथ मेंशन करना जरूरी है। द एज ऑफ द अक्यूज्ड पर्सन, अक्यूज्ड की एज क्या है मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में आएगी। देन मार्क्स ऑफ इंजुरी इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड के बॉडी पे अगर कोई मार्क ऑफ इंजुरी है वो भी मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट में मेंशन किए जाएंगे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ अक्यूज्ड फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, क्या उसके पास से डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मटेरियल लिया गया, फॉर एग्जांपल सीमेन लिया गया तो वो उसमें मेंशन करना पड़ेगा मेडिकल एग्जामिनेशन में कि डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए क्या लिया गया, बाल लिया गया, खाल ली गई या व्हाटएवर इट मे बी। अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल्स, और कुछ अगर मटेरियल पर्टिकुलर मेडिकल प्रैक्टिशनर को लगते हैं तो रीजनेबल डिटेल में उसमें मेंशन करना जरूरी है। द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइसली द रीजन फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट। सो जो भी कंक्लूजन मेडिकल एग्जामिनेशन में आए तो वो कंक्लूजन का रीजन भी रिपोर्ट में मेंशन करना जरूरी है। द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट। रिपोर्ट में ये भी मेंशन करना जरूरी है कि एग्जामिनेशन कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, कितना टाइम मेडिकल एग्जामिनेशन चला। देन the registered medical practitioner shall without delay forward the report of the investigation officer who shall forward it to the magistrate. So after preparing a medical examination report, the registered medical practitioner shall deliver that medical examination report to the police officer, and it will be the duty of police officer to deliver that medical examination report to the court. तो मेडिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर तैयार करेगा, इमीडिएटली वो पुलिस ऑफिसर को देगा और पुलिस ऑफिसर कोर्ट में सबमिट करेगा विदाउट डिले। तो ये था प्रोविजन सेक्शन 53A। नाउ सेक्शन 54, एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। अब यहां पर अरेस्टेड पर्सन शैल बी एग्जामाइंड बाय गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर एंड इन एब्सेंस ऑफ एनी अदर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर सून आफ्टर द अरेस्ट इज मेड। सो अरेस्ट कंप्लीट होने के बाद अरेस्टेड पर्सन का मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर के जरिए, या वो अगर नहीं है तो दूसरा कोई रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के जरिए मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब सेक्शन 53 और सेक्शन 54 में डिफरेंस क्या है? सेक्शन 53 में पुलिस को ऐसा लगता है कि मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो अक्यूज्ड के अगेंस्ट में हमको एविडेंस मिल सकते हैं और पुलिस रिक्वेस्ट करती है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। बट सेक्शन 54 में ऐसा है कि अक्यूज्ड को ऐसा लगता है कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ तो मेरा इनोसेंस प्रूफ हो सकता है, तो उस सिचुएशन में वो रिक्वेस्ट करेगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अक्यूज्ड। So, provided that where the arrested person is a female, the examination of the body shall be made only by or under the supervision of a female medical officer, and in absence of a
फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो सिचुएशन क्या है यहां पर कि अगर फीमेल का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है तो फीमेल का मेडिकल एग्जामिनेशन दूसरी फीमेल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही करेगी या उसके सुपरविजन में कोई मेल कर सकता है। दैट इज द प्रोविजन of section 54. The medical officer shall prepare the record of such examination, mentioning therein any injuries or marks of violence upon the person arrested and the approximated time when such injuries or marks may have been inflicted. तो मेडिकल ऑफिसर क्या करेगा, एक रिकॉर्ड तैयार करेगा और रिकॉर्ड तैयार करने में वो रिपोर्ट में मेंशन करेगा अगर मार्क्स ऑफ इंजुरी है उस अरेस्टेड पर्सन के बॉडी पे तो उसके मार्क्स ऑफ इंजुरी और अप्रॉक्सीमेट टाइम की इंजुरी कब कॉज हुई तो वो भी मेंशन करेगा। बहुत सी बार ऐसा होता है कि कोर्ट क्या करता है, पीसीआर ग्रांट करता है अक्यूज्ड को और पीसीआर 3 दिन का ग्रांट हुआ और पीसीआर ग्रांट होने के बाद में अगर अक्यूज्ड कहता है कि मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन हो, क्योंकि उसको टॉर्चर किया गया है वो पीसीआर के पीरियड में, तो मेडिकल एग्जामिनेशन में जब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा तो वो देखेगा कि बॉडी पे टॉर्चर के मार्क्स है क्या, मार्क्स है तो अप्रोक्सीमेट टाइम बताएगा कि पिछले 2 दिन में इसको इंजुरी कॉज हुई है। तो डेफिनेटली अगर पिछले 2 दिन में इंजुरी कॉज हुई है तो वो टॉर्चर पुलिस ने ही किया है, ऐसा ट्रीट होगा। तो यहां पर अक्यूज्ड के रिक्वेस्ट पे मेडिकल एग्जामिनेशन हो सकता है सेक्शन 54 के हिसाब से। वेयर एन एग्जामिनेशन इज मेड अंडर सबसेक्शन 1, a copy of the report of such examination shall be furnished by the medical officer or registered medical practitioner as the case may be to the arrested person or the person nominated by such arrested person. सेक्शन 54 के हिसाब से जब कभी भी अक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद एक कॉपी अरेस्टेड पर्सन को दी जाएगी उसकी या तो उसके नॉमिनेटेड पर्सन को दी जाएगी। अब यहां पर हम डिस्कस करेंगे महाराष्ट्र जुडिशियल एग्जामिनेशन में 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है कि अ पर्सन अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग रेप कैन बी मेडिकली एग्जामाइंड एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ पुलिस ऑफिसर ऑफ द कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन। अभी देखो कि ओनली आफ्टर ओरल कंसेंट ऑफ द पर्सन, ओनली आफ्टर रिटन कंसेंट ऑफ द पर्सन, ओनली अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, इवन बाय फोर्स। तो यहां पर हम देखें कि अगर पर्सन अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ कमिटिंग रेप, अगर कोई पर्सन रेप का ऑफेंस करता है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा होना चाहिए। तो यहां पर अगर हम देखें कि ओनली आफ्टर ओरल कंसेंट ऑफ द पर्सन, अक्यूज्ड की कंसेंट लेने की जरूरत नहीं है, ना ओरल ना रिटन, ना तो कोर्ट का ऑर्डर की जरूरत है, पुलिस ऑफिसर इवन बाय फोर्स भी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा सकता है। तो यहां पर रेड फॉन्ट में हम जो देखें, टू मेक सच एन एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन एंड टू यूज सच फोर्स एज रीजनेबली नेसेसरी फॉर दैट पर्पस, तो पुलिस कैन अप्लाई अ फोर्स फॉर इफेक्टिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड ऑफ रेप। तो इवन बाय फोर्स इज अ करेक्ट आंसर। प्रोबेबल क्वेश्चन है, which section of CRPC provides a medical examination of accused of rape? Section 52, Section 53, Section 53A और Section 54। So Section अब यहाँ देखिए हम एक्सप्लेनेशन में, तो सेक्शन 52 ये कहता है पावर टू सीज ऑफेंसिव वेपन, सेक्शन 52 तो नहीं है। देन सेक्शन 53 ये कहता है एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर, तो ये भी नहीं हुआ। देन सेक्शन 53A ये कहता है एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन अक्यूज्ड ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, और सेक्शन 54 एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ अरेस्टेड पर्सन। तो यहां पर सेक्शन 53A इज अ राइट answer. So this is a particular provision of section 52, 53, 53A and 54 which we have discussed in this lecture. I hope you understand this topic. If you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.